students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is house. वैसे तो हम जान ही चुके हैं डिफरेंट हाउसेस के बारे में. कुछ हाउसेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, कुछ हाउसेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं. लेकिन इन हाउसेस के बारे में और डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं. Some pictures of houses are given below. Look at them and answer the given questions. अब यहाँ पे आपको कुछ हाउसेस की पिक्चर दी गई हैं, आपको इनको ध्यान से देखना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Like, take the picture of the type of house you live in. You have to take the picture of the house that you live in. आप उस पिक्चर पर टिक लगाएंगे जिसमें आप रहते हैं. इज़ इट अ टेम्परेरी हाउस और अ परमानेंट हाउस. साथ ही साथ आपको बताना है जिस हाउस में आप रह रहे हैं वो टेम्परेरी है या फिर वो परमानेंट है. Houses are our basic need. It gives us shelter and protect us from harsh weather and dangerous wild animals. Houses जो है हमारी बेसिक नीड है क्योंकि हमको कंफर्टेबल फील हाउस में ही होता है. हाउस हमें शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Houses have changed with time. With time, the structure and need of houses have changed. In earlier times, houses were big in which a joint family lived together. People built their houses with the help of mud, straw, bamboo and grasses. हाउसेस का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है. जैसे पहले के जो ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, वो गुफाओं में रहते थे. धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना शुरू किया तिनकों से, मड से, झाड़ से. अब आगे जाके आप देखते हो कि और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए. Nowadays, houses are small and compact and the construction pattern of house have also changed. They are constructed with the help of bricks, cements and marbles and stones. The model of construction of houses change as people move to cities and metros to earn monies. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ जब लोग गांव से शहरों की तरफ आए. This growth in population in cities increased the need for houses. However, the land area is limited, hence people started constructing multi-story buildings for their accommodation. अब इतनी जनसंख्या शहरों में बढ़ गई कि लोगों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो गया. तो अब क्या हो गया, अब सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिनमें लोगों को रखा जाता है, अकोमोडेट किया जाता है. Brainstorm, do you live in a house similar to ones your grandparents lived in? क्या आप जिस हाउस में रह रहे हैं आपका ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस भी सेम था? Which type of house is it? Write 2 or 3 sentences about it. ठीक है, आपका जो हाउस है वो किस तरीके का है उसके बारे में आपको 2 to 3 sentences लिखने हैं. Now, types of houses. The design and construction of house depends upon the climate of a particular place and the availability of building materials. Therefore, the types of houses vary from place to place. Sometimes the economic status of people are influenced the way their houses are built. अब आजकल लोग अपना हाउस भी डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, जितना स्टेटस जितना बढ़ता जा रहा है, जितने लोग रिच होते जा रहे हैं, वैसे ही वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना हाउस जो है वो बनाते हैं. Let's us know about the various types of houses. People in some rural areas of our country live in huts. The walls are made up of mud. The roof is thatched and made from bamboo. The floor of a hut is generally coated with mud and cow dung. तो जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो ज़्यादातर हट में रहते हैं. ठीक है, इस तरीके का उनका तिनके से भरा हुआ हट होता है, घर होता है जिनकी रूफ जो होती है वो तिनकों की या घास फूस की बनी हुई होती है और जो उनकी दीवार होती है वो काऊ डंग की लिपी हुई होती है. In urban area of our country, people live in flats and bungalows. These are big and strong houses with lawns and gardens. These houses are built with the help of bricks, cement, timber, mortar and marbles. अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज़ में आपने देखा होगा जो हाउसेस होते हैं वो फ्लैट्स, बंगलोज इस तरीके के बने होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बने हुए होते हैं जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर, मोर्टार, मार्बल्स. In metropolitan cities, multi-storied buildings are constructed which have a large number of houses with many floors and underground parking. In these buildings, all modern facilities are available. Metropolitan cities में अगर आप चले जाओ तो आपको इस तरीके के लंबी लंबी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जो 11 मंजिला, 15 मंजिला, 21 मंजिला तक जाते हैं. इसके अंदर आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग होती है और बिल्डिंग्स के अंदर ही आपको सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं.
Houseboats are generally found in lakes. These houses are made from straws, steel and aluminium sheets. Houseboats are common in the Lake of Kashmir and Kerala. These house float on water. तो आपने इस तरीके के बोट देखे होंगे जिसके ऊपर हाउसेस बने हुए होते हैं, ये लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है, और इजीली पानी में ये फ्लोट कर रहे होते हैं। ये हाउसेस आपने ज़्यादातर कहाँ देखे होंगे? कश्मीर में या फिर केरला में देखे होंगे। Stilt houses are found in areas where heavy rainfall occurs. These houses are made from straws, planks, bamboo, etc. These houses are made on a raised platform which is much higher than the ground. अब ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की जो बाढ़ होती है वो ज़्यादा आती है, मतलब बाढ़ ज़्यादा होती है, तो इसमें आपका स्टिल्ट हाउसेस बने होते हैं। ये आपके ग्राउंड लेवल से हाइट पे होते हैं थोड़ी सी, ताकि जो पानी है वो घर के अंदर ना घुस पाए, साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो कूड़ा है जो पानी के साथ बह के आ जाता है वो भी घर के अंदर ना घुसे। In hilly areas, people build houses with the help of wood. The walls of these houses are made from stones. These houses have a sloped roof so that snow and rain can slide down easily. अब आपने हिल एरियाज़ में देखा होगा जो हाउसेस होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल ब्रिक्स पत्थर वगैरह के बने होते हैं, लेकिन जो उनकी छत होती है वो इस तरीके की होती है, स्लोप्ड होती है, ताकि उसमें जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, उस पर जमे ना। Read more. Slums are colonies of small and temporary huts found in some regions of the cities. The walls of these huts are made from bricks and roof from the tin sheets. People of these colonies live in unhealthy conditions. The streets are narrow and filled with garbage and stagnant water. These places are suitable for mosquito breedings. In slums, safe drinking water and proper toilet facilities are not available for people. The government plan to build houses for the urban poor living in slums to raise their standard of accommodation and living. अब आपने स्लम एरियाज़ के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, इस तरीके से लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये अपने घरों को छोड़ करके गाँव से शहरों की तरफ आते हैं यहाँ पे काम की खोज में। अब इनको प्रॉपर घर तो यहाँ ये बना नहीं पाते, तो इनको स्लम्स वगैरह में रहना होता है, जहाँ इनकी जो दीवारें होती हैं वो कच्ची मिट्टी की या पत्थर वगैरह या ब्रिक्स की बनी होती है, और इनकी जो छत होती है वो टिन की होती है। इनकी गलियाँ इतनी नैरो होती हैं, ज़्यादातर वहाँ से बदबू आ रही होती है, पानी रुका हुआ होता है जिसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं, इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि इन लोगों को प्रॉपर एक अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। मटीरियल्स यूज़ फॉर मेकिंग हाउसेस। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या मटीरियल जो है यूज़ होता है हाउसेस बनाने में। पीपल यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मटीरियल्स टू कंस्ट्रक्ट देयर houses in modern times. Bricks, concrete, steel, aluminium, cement, marble, stones, tiles, etc. are used as building materials. तो अलग अलग तरीके का जो घर है वो अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, और ज़्यादातर आजकल लोग जो है स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिक्स है, सीमेंट है, ताकि उनका घर जो है वो लंबे समय तक टिका रहे। The walls are made from bricks, mortar and iron. The walls are painted to look beautiful. The floors are made from bricks, cement, tiles, concrete, etc. to protect them from being damp. The roofs of buildings are made from concrete, stones or tiles. These roofs are strong, heat and damp proof. Some people use tin sheets as the roof. तो ये सब मटेरियल जो है वो घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Brainstorm, observe the given picture. Can you tell in which area such houses are seen? ये ज़्यादातर हमें दिखते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। Write how these houses help people live in that area. आपको बताना है कि ऐसे जो हाउसेस होते हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों को कैसे हेल्प करते हैं रहने में। What are the building material used to make such houses? तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें आपके आइस ब्लॉक्स लगते हैं इस घर को बनाने के लिए, जिसे हम इग्लू कहते हैं। Word meanings: accommodation means a place to live in. Thatched means dried straws used for making a roof. Mortar means a paste used to bind construction blocks together and fill the gaps between bricks or stones. Concrete means a mixture of broken stones, cement, sand and water. तो ये कुछ वर्ड्स आपके चैप्टर में आए हैं जिनके मीनिंग यहाँ पे आपको दिए गए हैं। Reflect time, make a model of a bungalow and show different rooms such as bedroom, guest room, dining room and kitchen. आपको मॉडल बनाना है एक बंगलो का, जिसमें आपको अलग अलग रूम जो है दिखाने हैं। आजकल तो मॉडल जो है वो मार्केट में भी मिल जाते हैं, जैसे डॉल हाउस होता है, उसमें डॉल का अलग से किचन होता है, उसका अलग से बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, सोफ़ा वगैरह होता है, टीवी रूम वगैरह होता है।
Now brushing up, houses are our basic need and provide us protection. In earlier times, people built their houses with the help of mud, straw and grasses. Nowadays, multi-story buildings are constructed for living with the help of bricks, concrete, steel, aluminium, cement, marble, stones, tiles, etc. Houses are of various types in different areas, mainly due to their climatic conditions. People in rural area of our country live in huts. People in urban area of our country lives in flat and bungalows. तो इस चैप्टर में हमने हाउसेस के बारे में बात की। अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग हाउस बना के रहते हैं। जैसे जो गांव में जो घर होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं कौन से घर से, जो शहरों में बने हुए होते हैं, और इनके बनने में जो मटीरियल होता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। Now it's time to practice. Let's practice now. Take the correct option. Multi-story buildings are found in कौन से areas में? Urban areas में देखने को मिलते हैं। Fill in the blanks. The land area for making house is called. उसे क्या कहते हैं? उसे हम place कहते हैं। Now write T for true statement and F for false statement. Houses are our basic need. Yes, it is true. तो आप यहाँ पे T लिखोगे। Answer the following questions. What are the difference between a hut and a bungalow? एक हट और एक बंगलो के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हट को बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है, और मटेरियल भी काफ़ी कम लगता है, जबकि बंगलो को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी लगता है, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स एक्सेट्रा। नाउ फन टाइम, आर्ट इंटीग्रेशन, ड्रॉ ब्यूटीफुल इग्लू एंड कलर इट। अभी आपने ऊपर चैप्टर में इग्लू देखा था, ठीक है, तो इग्लू आपको बनाना है, उसको कलर करना है। डिग फर्दर इंफॉर्मेशन, लर्निंग इन जापान द हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड, डिस्कस द रीज़न। जापान में जो हाउसेज होते हैं वो इस तरीके के लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो रीज़न क्या है इसको लकड़ी का बनाने का, ये आपको ढूंढना है और बताना है। Do something good, life skills and values. Write 5 sentences on how you should take care of your house. अब हम घर में रहते हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखना, इसकी केयर करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो आपको बताना है 5 sentences में कि आप अपने घर का ध्यान जो है कैसे रखते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.